am Jaswinder from Kendriya Vidyalaya Paschim Vihar. Want to tell you today's celebration of online National Sports Day, an account of Major Dhyan Chand, the legend hockey player of Indian team. He was born on 29th August 1905 and he earned 3 Olympic medals, gold medals, and that is in 1928, 1932 and 1936. And he was also awarded with Padma Bhushan. As you all have seen his contribution in sports, so we will talk about the importance of sports in our daily life, but due to COVID-19, how we'll do at home. So it is advisable to all of you to stay at home. Stay productive, stay positive, stay healthy. We should do some yoga exercises, some physical fitness or some stretch exercises also. As you all know that it increases the blood flow in the body and also increases our immunity. Doing any activity around the home is better than none at all. Hello everyone, I am Meenakshi Parwar, PGT Chemistry from Kendriya Vidyalaya Paschim Vihar. I am here to speak on fitness and wellness in life through sports. This speech is being given to celebrate the online National Sports Day function, which is being celebrated to commemorate the birth anniversary of famous hockey player Mr. Dhyan Chand. Children, sports play a very important role in our lives. We all have been playing from the very beginning, from childhood, right? And today also, those people who have been playing well and playing regularly in their lives, they are doing well in their various activities. Sport event, whatever sport you are interested in, you must take up a sport to build up your healthy routine in life. I am not saying all this just to say. I am saying all this on my personal experiences. I have been playing badminton during my school and college days and have been leading a very healthy life. But after the age of 30, I have had 5 paralytic attacks and I recovered fully from all those attacks. And the 100% credit to my recovery goes to the sports that I have been playing during my childhood. The sports have inculcated a very positive attitude towards life in me. Sports have told me how to face the various challenges in life. It has taught me to respect the victory of the other and accept the failure very easily in life. If we lose, whenever we play a game, either we win or we lose. So always winning is not possible. We lose also at times. So we learn how gracefully to accept the defeat. And this acceptance of defeat really helps us a lot in our lives. Life is full of ups and downs, and we must manage how to overcome the adverse situations in life. It is through sports we can really do well in our lives. And sports help us in keeping our mind sharp and keeping all our senses agile. Through sports, we can really solve a number of different situations we are into it. In the present scenario, we hear a number of cases of depressions and other things. Children also these days are very much pressurized because of studies. But children, you must have an outlet for yourself. If you have an outlet for yourself, your extra energy will go and you will not have much of depression or any negative effects in your life. So through sports, you can always manage your energy in your body. And now to end with, I all suggest that after the lockdown situation, you all must take up a sport seriously and practice that so that whatever extra energy you have can be used in fruitful purposes, and you will develop a confidence in life and you will learn how to go about the various situations in life. Thank you and Jai Hind. नमस्कार, मैं मुनेश कुमार शर्मा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। मैं आपको खेलों के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, जीवन में जो भी काम है वो सारे ज़रूरी होते हैं, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, बाज़ार जाना हो, सामान लाना हो या कुछ अन्य जो भी काम है हमारे जीवन में,
वो सारे काम ज़रूरी होते हैं। बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है तो हमारे लिए पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन ये सब काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बच्चों के लिए अगर कहें तो पढ़ाई ज़रूरी है उनके लिए, तो पढ़ाई भी वो तभी कर पाएंगे जब उनका मस्तिष्क स्वस्थ हो, और स्वस्थ मस्तिष्क केवल स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी किसी काम में लग सकता है आसानी से, और हम उसे अच्छे से पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा शरीर सबसे पहले ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि हम खेल खेलें। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन हम खेल खेलें, लेकिन हम खेलों को समय दें, और ऐसे खेलों को समय दें या ऐसे खेल खेलें जिनमें हमारी बॉडी मूवमेंट करे। कुछ भाग दौड़ वाले खेल खेलें। तो हम घर में ही ऐसे खेल भी खेल सकते हैं, जैसे सीढ़ियों पर चढ़े उतरे ऐसे खेल खेल लिए, या फिर कुछ और जो खेल खेल लिए। बॉल ले आए, बॉल को दीवार पर मार कर जो है उसको कैच कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है मूव कर रही है। इस तरह के कुछ खेल खेले जाएँ तो हम जो है अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा जो जब हम खेल खेलते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे जो खाया पिए जो बहुत आसानी से पच जाता है। छोटी मोटी बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं कि हमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे कि उन्हें खांसी जुकाम होते हैं, तो वो उनको पता ही नहीं लगता है कब उनके खांसी जुकाम ठीक हो भी गए, और बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। तो वो सब क्या है कि उनकी बॉडी जो है वो सब उसके अनुकूल हो गई है, उस मौसम के, उस वातावरण के अनुकूल हो जाती है, क्योंकि वो खुद बना लेते हैं अपनी बॉडी को इसके अनुकूल। तो हमारी बॉडी को हमें स्वस्थ रखना है तो हमें खेल खेलना ज़रूरी है, और खेलों को जब हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारा शरीर ही नहीं, हमारा आसपास का वातावरण भी हमें अच्छा लगने लगेगा, हर काम में हमारा मन लगने। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सी गौतम, केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बिहार, आज आपको खेल के महत्व के विषय में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलता हूँ। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन को हराने वाला सेनापति नेल्सन ने कहा था कि मेरी विजय का समस्त श्रेय किशोरावस्था के खेल के मैदान को जाता है। द वॉर ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द फील्ड्स ऑफ एटॉम। दूसरी कहावत, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तीसरी कहावत, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। इन तीनों कहावतों के विपरीत जो प्रमुख कहावत समाज में प्रचलित है वो यह कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस कहावत के ठीक विपरीत आज का समाज खेल के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहा है, और यह कहावत अब पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। आज खेल एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता दिख रहा है। जो बच्चे केवल पढ़ना ही पसंद करते थे वो आज आलसी, डरपोक और अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। ठीक इसके विपरीत जो बच्चे खेलते कूदते रहे और साथ ही पढ़ाई करते रहे, उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। वो मस्तिष्क, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होकर सामने आए हैं। खेल हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनों का विकास करने का साधन है। यह हमें केवल दिमागी रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी सुदृढ़ करता है। हमारे शरीर को हट्टा कट्ठा बनाता है, गतिशील एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। दोनों तरह के खेल, चाहे वो घर के अंदर का खेल हो या बाहर का खेल हो, हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कैरम हो, चेस हो, ये इन दोनों का मिश्रण दोनों का मिश्रण व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के इस आधुनिक युग में जब कई प्रकार की घरेलू गतिविधियां ने खेल की जगह ली है, जैसे टेलीविजन देखना, वीडियो गेम्स खेलना, इंटरनेट पर काम करना, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए खेल सामने आकर इनका विकल्प दिखाता है। इसके बिना हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। उपरोक्त सारी गतिविधियां शरीर को अस्वस्थ करती है, जबकि खेल कूद हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायक है। आज की व्यस्त दिनचर्या में खेल ही एक मात्र साधन है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारा संपूर्ण विकास करने में सहायक होता है। हमारे
नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है, हड्डियां मजबूत करता है, पाचन तंत्र सुदृढ़ करता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है और मनुष्य को आत्मनिर्भर तथा जीवन में सफलता प्रदान करता है। जहाँ सफलता की बात होती है तो खेल जीवन को जीने का आधार माना गया है। अगर हम इसे करियर के रूप में भी देखें तो प्रसिद्ध खिलाड़ी चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हों, जो खेल मंत्री के रूप में भी भारत सरकार में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो, पीटी उषा हो, कपिल देव हो, तेंदुलकर हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, सुशील कुमार हो, तरह तरह के खेल में हमारे खिलाड़ी सामने आए हैं और उन्होंने करियर को खेल को करियर के रूप में अपनाया है और वो सफल रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों में से बहुत सारे खिलाड़ियों को खेल रत्न और अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। भारत सरकार आज खेल को बढ़ावा देकर हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय छवि देने में प्रदान करे और ये सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेकर और पदक जीतने में सफल हुए हैं। आइए हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। खेल में भाग लेने वाले हमारे सभी वर्ग के लोग इसे व्यायाम का एक विकल्प भी मान सकते हैं। इस तरह के खेलों से एक आत्मविश्वास पैदा होता है नई पीढ़ी में, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों का भी महत्व बढ़ता गया है। वहां खेल अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। महान पुरुष जैसे विवेकानंद आज से 100 साल पहले खेल के महत्व को विदेशों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। मनुष्य को जो शिक्षा ने पाठ पढ़ाया वह उससे कहीं ज़्यादा खेल ने मैदान में सिखा दिया है। खेल खेलते समय अनुशासन में रहना, नेता की आज्ञा का पालन करना, खेलों में जीत के समय उत्साह और हारने पर सहिष्णुता तथा विरोधी पक्ष के प्रति विरोध का भाव न रखना आदि, ये सभी चीज़ें खेल के मैदान ही सिखाती है। अतः हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम खेल में हिस्सा लें और इस तरह के खेल को हम अपने जीवन में उतारें जो हमें सफल बनाने में पूर्ण सहायक होता है। धन्यवाद। Teachers and all, I Bhushan of class 12th is going to speak on my topic COVID-19 fitness at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it's very important for people of all ages to be as active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you to do just that and to have some fun at the same time. Just taking a short break from sitting by doing 20 to 30 minutes of high intensity physical movements such as walking, running, stretching, push-ups, squats will help ease your muscle and improve blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefits both the mind and the body. It can reduce high blood pressure, help manage weight and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes and various cancers, all conditions that can increase susceptibility of COVID-19. They also increase bone and muscle strength and increase balance, flexibility and fitness. For older people, activities that improve balance help to prevent falls and injuries. Regular physical activity can help give our days a routine and be way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline and delay the onset of dementia and improve overall feelings. How much physical activity is recommended for your age group? WHO has recommendation on the amount of physical activity people of all ages should do to benefit their health and well-being. Children under 5 years of age, all young children should spend at least 180 minutes a day in a variety of types of physical activity. Children and adolescents aged 5 to 17 years, all children and adolescents should do at least 60 minutes a day of
moderate to vigorous intensity physical workout. This should include activities that strengthen muscle and bone at least 4 days per week. Doing more than 60 minutes of physical activity daily will provide additional health benefits. Adults aged over 18 years. All adults should at least 150 minutes of moderate intensity physical activity throughout the week, or at least 75 minutes of vigorous intensity physical activity throughout the week. For additional health benefits, adults should increase their moderate intensity physical activity to 300 minutes per week for equivalent. For developing and maintaining musculatory skeletal health, muscle strengthening activities involving major muscle groups should be done on 2 or more than days to week. In addition, older adults with poor mobility should do physical activity to enhance balance and prevent falls on 3 or more days per week. Thank you. Please stay at home, stay safe, stay healthy. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Teachers and all, I Bhushan of class 12th is going to speak on my topic COVID-19 fitness at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it's very important for people of all ages to be as active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you to do just that and to have some fun at the same time. Just taking a short break from sitting by doing 20 to 30 minutes of high intensity physical movements such as walking, running, stretching, push-ups, squats will help ease your muscle and improve blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefits both the mind and the body. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase susceptibility of COVID-19. They also increase bone and muscle strength and increase balance, flexibility, and fitness. For older people, activities that improve balance help to prevent falls and injuries. Regular physical activity can help give our days a routine and be way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline, and delay the onset of dementia and improve overall feeling. How much physical activity is recommended for your age group? WHO has recommendation on the amount of physical activity people of all ages should do to benefit their health and well-being. Children under 5 years of age. All young children should spend at least 180 minutes a day in a variety of types of physical activity. Children and adolescents aged 5 to 17 years. All children and adolescents should do at least 60 minutes a day of moderate to vigorous intensity physical workout. This should include activities that strengthen muscle and bone at least 4 days per week. Doing more than 60 minutes of physical activity daily will provide additional health benefits. Adults aged over 18 years. All adults should at least 150 minutes of moderate intensity physical activity throughout the week, or at least 75 minutes of
vigorous intensity physical activity throughout the week. For additional health benefits, adults should increase their moderate intensity physical activity to 300 minutes per week for equivalent. For developing and maintaining musculatory skeletal health, muscle strengthening activities involving major muscle groups should be done on 2 or more than days to week. In addition, older adults with poor mobility should do physical activity to enhance balance and prevent falls on 3 or more days per week. Thank you. Please stay at home, stay safe, stay healthy. Good morning to the principal ma'am, vice principal ma'am, teachers and all my dear friends. I, Divyang of class 11th A, would like to speak on sports and games at this occasion. I am very thankful to give me such a great opportunity to speak here and believe in me. As we all know that sports and games are important for all around development and an important part of our routine education. They help to shape our personalities. Moreover, sports fills our mind with happiness. Also, they keep our bodies and minds strong, healthy and fit. It gives us a change from the same old routine and relaxes our mind and body. It is a useful means of entertainment and as well as a way to do physical activity. Furthermore, they build character and gives huge amount of energy and strength. One who is constantly involved in sports and games activity, he has a good mental and physical growth and development. Sports and games help us to tackle and learn about how to overcome difficult situations in life and keep body relaxed and mind free from tension. Coronavirus disease is an infectious disease caused by newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical problems like diabetes, chronic respiratory disease, etc. are more likely to develop serious illness. Hello everyone, I am Mishika Sehrawat of class 9th A from KV Paschim Vihar, and in this video I am going to share some of my experience during this COVID-19 pandemic lockdown. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it's very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of light physical exercise improve your blood circulation and muscle activities. Now, I'm going to tell you some of easy exercise which you can do at home, and by doing them twice a daily, you can stay fit. As I've told you that now I'm going to share some of my experience. So I would like to tell you that I focus on my splits and now I'm able to do splits. I would like to show you. I would like to tell you that you can do everything, but the thing is you need to stay safe and you need to do exercises regularly. Thank you very much. ठीक है। आपसे मेरे को पूछूंगी क्या, मतलब मैं एक सजेशन चाहूंगी कि आप और सविता जी जो पेरेंट्स हैं, जो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप दोनों, आप भी वर्किंग हो और आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, बच्चों को भी देते हो, सविता जी भी सेम वही चीज करती हैं, बट आप दोनों ये चीज जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो ना, जितने प्यारे तरीके से मैनेज कर रहे हो सब चीजें एक साथ, जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, पहली बात तो ये कि हाँ चलो लड़कियां हैं, लड़कियों को ज्यादा आगे मतलब स्पोर्ट्स में क्यों इतना रखना है, पढ़ाई करने दो, और कई बार वो अच्छा कर रहे होते हैं तब भी वो पीछे एक कदम उठा लेते हैं कि नहीं यार रहने दो, जितना हो गया, इससे ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, रहने दो। और इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, आजकल पूरा भारत एक मोड़ से गुजर रहा है, उसको कहेंगे तनाव का मोड़। हर घर में कोई ना कोई तनाव है और तनाव का पूरा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर आपको डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है
तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, और आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। आप सोचो हम कुछ ना करें और हमारे बच्चे करें, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो आपसे, आप दिखोगे तो थोड़ा बहुत कर देंगे, बाकी वो रिजल्ट नहीं देंगे। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, कुछ भी वर्कआउट करो डेली का। कितने देखता हूँ आजकल बच्चे हैं कितने हैवी हो रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। और मैं तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को कहना चाहूंगा, कोई भी बंदा ये कहता है मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो मैं क्लियर कट कहता हूँ सुबह आदत डालो आप सूर्योदय देखने की। लेकिन वो आदत जब आपको पड़ जाती है, आप सुबह उठ के सूर्योदय देखते हो, तो ऑटोमेटिक आपका फिजिकल एक्टिविटी करने को दिल करेगा। उसके बाद आप आदत डालो, आप रात से दिन होता देख सको, क्योंकि आपको सूर्योदय से भी 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। ये अगर आपको हैबिट पड़ गई तो आप लाइफ में कभी बीमार नहीं होगे। मैं ये टिप खुद के लिए ले रही हूँ, मेरे को भी आदत नहीं है सुबह उठने की इतनी जल्दी। पर आप सूरज अच्छा लग रहा है सूरज के निकलने के बाद उठते हो तो ऑटोमेटिक ये बात होती है। मेरा सुबह का क्या है, सुबह उठता हूँ मैं, उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो गया, मैं डेली नहा धो के जब रनिंग करने जाता हूँ। डेली का रूटीन है मेरा, और आके फिर नहा लेता हूँ पसीने से नहा के। बहुत बड़ी बात है ये, आप सच में बहुत इंस्पिरेशनल बातें बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चीजों के बारे में सोचते होंगे बट करने में बहुत कतराते हैं। बट जब आप जैसे लोग ये चीज बोल रहे हैं ना, तो वो चीज भी अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं ढालेंगे इस चीज को, और मैं भी करूँगी। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी थे जो नंगे पैर खेलकर, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए। ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत के खाते में आया, उसका श्रेय मेजर ध्यानचंद को जाता है। मेजर ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी थे जो हॉकी को अपना मजहब मानते थे। वो कहते हैं कि मेरा धर्म है वो हॉकी खेलना, मेरा धर्म है, मेरा मजहब है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है। एक साधारण परिवार में 1905 में इलाहाबाद में 29 अगस्त को जन्म लिया। बचपन में हॉकी की स्टिक उपलब्ध नहीं थी तो पेड़ की टहनी तोड़ लेते थे, उस पेड़ की टहनी से प्रैक्टिस करते रहते थे, खेलते रहते थे। उनके पिताजी एक फौजी थे। जब वह फौज में थे और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि गांव में उस समय उनका नाम जो ध्यान सिंह होता था वो बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनको 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती करवा दिया। 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती होकर मेजर ध्यान, उस समय जो ध्यान सिंह थे वो बड़े खुश थे कि चलो 5, 7, 10 रुपए सैलरी भी मिलेगी और सैलरी मिलने के साथ साथ हॉकी खेलने का मौका मिलेगा। फौज में भी वह लकड़ी की, पेड़ की लकड़ी को लेकर, टहनी को लेकर वो लगातार हॉकी खेलते रहते थे। ऐसे ही फौज में एक हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी थे, कोच थे। उन्होंने जब उसको खेलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि जब ये लकड़ी से इतनी अच्छी हॉकी खेलता है तो इसके हाथ में यदि हॉकी की स्टिक दे दी जाए तो यह क्या चमत्कार कर सकता है। तो उन्होंने उनको स्टिक दी, उन्होंने खेलना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो रात भर जाग कर प्रैक्टिस करते रहते थे। उनको सपने में सोते जागते उठते बैठते केवल हॉकी दिखाई देती थी। और जब वो रात को प्रैक्टिस करते थे, चांदनी रात में प्रैक्टिस करते थे, तो उनके जो बालाजी, जो उनके कोच थे, उन्होंने उनको कहा भी तुम इतना जुनून रखते हो, इतना पैशन रखते हो, तुम तो रात को भी हॉकी खेलते हो, चांद की चांदनी में भी हॉकी खेलते हो, तो तुम्हारा नाम ध्यान सिंह नहीं ध्यानचंद होना चाहिए। और इस तरह से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। आर्मी में प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते करते 1928 में पहला ओलंपिक हुआ। पहला ओलंपिक उन्होंने जीता। 1932 में दूसरा ओलंपिक हुआ, दूसरा ओलंपिक जीता। जब पहले ओलंपिक में भेजने की बात थी तो अचानक उनका चयन किया गया, वो गए। तो आर्मी ने, उस समय भारत गुलाम होता था और अंग्रेज ये सोचते थे कि ये जो इंडियन है ये कुछ कर नहीं सकते, इनके अंदर कोई योग्यता नहीं होती, इनके अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि कोई बड़ा काम कर सके, कोई गोल्ड मेडल ला सके। तो उस समय भारतीयों का नाम उन्होंने रोशन किया। 1928 में जब गए और जब 1928 के ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया तो 1928 के उस ओलंपिक में भाग लेते हुए उन्होंने गोल पर गोल दागे। जैसे क्रिकेट में
मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन क्रिकेट में ब्रैडमैन का नाम आपने सुना होगा, जॉन ब्रैडमैन, यदि मेरा उच्चारण ठीक है तो। वो रनों की जैसे बारिश करते थे, ऐसे ही फुटबॉल की जब बात आती है तो पेले की बात आती है, महान फुटबॉल खिलाड़ी कि फुटबॉल की जो गेंद है, फुटबॉल है, बॉल है, वो उनके इशारों पर नाचती थी। जैसे वो बॉल के ऊपर जादू करते थे, बॉल को जैसे वो इशारा करते थे वैसे ही वो बॉल चलती थी। जैसे आपने मुक्केबाजी में मोहम्मद अली का नाम सुना है, तो हॉकी में ये जो लेजेंडरी टाइटल है, ये जो सम्मान है, ये केवल ध्यानचंद को मिला है। मेजर ध्यानचंद के बारे में ब्रैडमैन ने ये कहा, क्रिकेट में देखिए 15-20 मीटर का जो पिच होती है, उस पिच के ऊपर बॉल फेंकी जाती है, उसके ऊपर हर बार हिट किया जाता है, बहुत से ओवर होते हैं, तो वहां पर रन बनाना आसान होता है। जॉन ब्रैडमैन ने यह कहा था कि जैसे हम रन बनाते हैं वैसे ध्यानचंद गोल करते हैं। तो गोल करना कितना मुश्किल होता है, 20-22 खिलाड़ियों के बीच में से हॉकी की बॉल को लेकर जाना और उसको गोल करना, वो कितना पुरुषार्थ का काम है, उसकी तुलना उससे उन्होंने की गई। जब 1932 में वो खेले, 1936 में खेले, जब वो 36 में खेल रहे थे तो जर्मनी के साथ अंतिम मुकाबला चल रहा था। हिटलर खुद वहां पर बैठा हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में ये ओलंपिक हो रहे थे, और इस ओलंपिक का आयोजन हिटलर ने इसीलिए किया था कि मेरी इमेज बिल्डिंग हो। आपको ध्यान होगा कि 36 के बाद 5 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। हिटलर ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने का मन बनाया और ये बनाया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। तो उससे पहले 1936 में जर्मनी की इमेज बिल्डिंग करने के लिए, खुद की इमेज बिल्डिंग करने के लिए उसने ओलंपिक की मेजबानी की थी, और वो ये मानता था कि ओलंपिक में जो जीतेंगे वो केवल जर्मनी खिलाड़ी ही जीत सकते हैं। तो हॉकी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। उससे पहले जर्मनी का जब ये फाइनल मैच हो रहा था तो उससे पहले एक फ्रेंडली मैच वहां पर खेला गया था। उस फ्रेंडली मैच में क्या हुआ, जर्मनी की टीम ने भारत की टीम को 4-1 से हरा दिया। उस टीम से उस फ्रेंडली मैच में हारने के बाद मेजर ध्यानचंद लिखते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आई थी, हम जब आए तो हमें खाना अच्छा नहीं लगा। खैर, अब बात करते हैं 1936 का जो अंतिम फाइनल मैच हो रहा था जर्मनी और भारत के बीच में, तो हिटलर वहां पर बैठा हुआ था। फर्स्ट हाफ में भारत की टीम भी कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई, जर्मनी की टीम भी लगी हुई थी, और फर्स्ट हाफ में जब जर्मनी थोड़ा सा लीड ले रही थी तो उन्होंने, क्योंकि जर्मनी के ग्राउंड के ऊपर ये मैच हो रहा था और उस समय जर्मनी ये सोचते थे कि सबसे बहादुर, सबसे अच्छे हम ही हैं, तो जर्मन के एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के मुंह के ऊपर स्टिक मारी और स्टिक मारकर उनका एक दांत तोड़ दिया। उसके बाद फिर वो ड्रेसिंग रूम में इकट्ठे हुए। हाफ के बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका बदला लेना है, और उसके बीच में जब ये लगा कि अब हॉकी अपनी भारत की टीम कुछ चमत्कार नहीं कर पा रही, तो उस समय एक गुप्ता जी होते थे, पीके गुप्ता जी, उन्होंने उस समय तिरंगा झंडा निकाला। उस समय भारत का झंडा तिरंगा नहीं था, तिरंगा झंडा 1947 में बना। यूनियन जैक जो ब्रिटेन का झंडा है वो भारत का झंडा था, तो उन्होंने तिरंगा झंडा निकाला और उस तिरंगे झंडे को निकाल कर वहां जो ड्रेसिंग रूम होता है वहां पर फैलाया कि अब हम जो खेलेंगे, जो हॉकी खेलेंगे, वो इस तिरंगे के लिए खेलेंगे और हमें अपने भारत का नाम रोशन करने के लिए ये खेलना है। तो तिरंगे के ऊपर उन्होंने शपथ ली 1936 में, आजादी से 11 साल पहले, जब तिरंगे को फहराना, तिरंगे को लहराना भी अच्छा नहीं माना जाता था, जुर्म माना जाता था, तो उसमें उन्होंने कसम ली। और उसके बाद जब वो मैदान पर उतरे तो उन्होंने धड़ाधड़ गोल बनाए और इतने गोल करे कि सेकंड हाफ में फाइनल रिजल्ट आने से पहले हिटलर ग्राउंड छोड़कर चला गया। हिटलर ने जब ये मेजर ध्यानचंद का जादुई खेल देखा, 1928 में भी जब मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में खेल खेला, तो उस समय के जो अखबार हैं वो मेजर ध्यानचंद के नाम से पटे रहते थे। लोग ये कहते थे कि ये जादूगर है। हर बार जब ओलंपिक होता था तो उनकी स्टिक को चेंज किया जाता था। विपक्षी टीम ये कहती थी कि ये जो स्टिक है ना, इसमें कुछ इन्होंने जादू किया हुआ है, इन्होंने कोई ऐसी चुंबक लगाई है जिससे गेंद चिपक जाती है। एक ओलंपिक के बाद तो, एक मैच के बाद तो नीदरलैंड या हॉलैंड की बात है, उसकी टीम के साथ जब था तो उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं इसके अंदर कोई गोंद, कोई चुंबक, कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं लगा। तो जीते जी लीजेंड बन जाना, जीते जी किंवदंती बन जाना, ये मेजर ध्यानचंद ने किया। जब हिटलर चला गया, जर्मनी में गेम चल रहा था, तो हिटलर ने सोचा कि ये इतना करिश्माई खिलाड़ी है, और वो जो खेल खेलते थे उसमें जो दूसरे लोगों की हार होती थी, अमेरिका की हार होती थी, हॉलैंड की हार होती थी, उस समय जर्मनी को हराते थे, तो इन देशों को जब हराते थे तो हार कैसे होती थी, 24-1,
माना इंडिया ने, मेजर ध्यानचंद ने 24 गोल मारे और विपक्षी टीम एक गोल भी नहीं कर पाई या 0 गोल पर आउट हो गई, और भारत ने 17 किए, 12 किए, 20 किए, 25 किए, ऐसे गोल लगाते थे। तो उस ओलंपिक में 24 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए, उनकी टीम ने किए। और हिटलर ने जब देखा कि जर्मनी की टीम में इसको लाना चाहिए तो उन्होंने पता किया। तो जो मेजर ध्यानचंद जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे तो सिपाही के रूप में, रंगरूट के रूप में हुए थे। जब उन्होंने पहली बार 1928 में ओलंपिक जीता तो उनको लांस नायक बना दिया गया था। 1936 तक वो लांस नायक थे। तो उन्होंने जब पता किया कि ये कौन है तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इंडियन आर्मी की टीम में एक सिपाही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं जर्मनी में आपको खूब धन दौलत दूंगा, आपको मेरी सेना में जनरल के रैंक के बराबर मैं रैंक दूंगा। तो मेजर ध्यानचंद की खुददारी ने ये गवारा नहीं किया। उन्होंने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकराया बहुत विनम्रता के साथ और ये कहा कि मैंने अपनी मिट्टी का, अपने देश का नमक खाया है, मैं यदि खेलूंगा तो भारत के लिए ही खेलूंगा। इतने खुददार वो व्यक्ति थे। हमने क्या किया आजादी के बाद? कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार आने के बाद, आजादी के बाद 1979 में वो बीमार पड़े, उनको कैंसर हुआ और कैंसर होने के बाद उनको जनरल वार्ड में साधारण मरीज की तरह उनको अपना दम तोड़ना पड़ा। उनका इलाज ठीक से हम नहीं करवा पाए। अंतिम दिनों में वो बहुत गरीब हो गए थे। 3-4 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनके पास संसाधन नहीं बचे थे, तो उनका कोई सम्मान हम नहीं कर पाए। आज भी वियना में एक स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जो फोटो लगी हुई है उसमें 4 हाथ उनके दिखाए हैं और चारों हाथों के अंदर हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि ये जो हॉकी का जादूगर है ये एक हाथ से नहीं खेलता था, ये 2 हाथ से नहीं खेलता था, ये 10 हाथों के साथ खेलता था और उन 10 के 10 हाथों में इसके हॉकी की स्टिक होती थी। ऐसे जीवंत देवता मेजर ध्यानचंद थे, ऐसे लीजेंडरी, ऐसे किवंदती वो थे कि अपने जीवन में ही वो किवंदती बन गए थे। पूरे अखबार भरे रहते थे। चेक रिपब्लिक एक देश है, उसकी एक बहन उनकी बहुत बड़ी फैन बनी, वो उनसे बार बार मिलती रहती थी। उसने एक बार सरेआम उनको गले लगा लिया। तो मेजर ध्यानचंद बहुत सदाचारी थे, बहुत चरित्रवान थे। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद के लोग इतने दीवाने थे कि मेजर ध्यानचंद 1936 के ओलंपिक के लगभग 30 साल बाद एक बार दोबारा जर्मनी गए। जब वो जर्मनी गए तो एक व्यक्ति स्ट्रेचर के ऊपर लेटकर हॉस्पिटल से उनके दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आया। उनके पास यूरोप के उन सारे अखबारों की कटिंग थी और मेजर ध्यानचंद के बेटे बताते हैं, वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेजर साहब से मिला। मेजर साहब से मिलने के बाद मुझे उनके साथ कुछ बैठने का अवसर मिला तो मुझे उन्होंने सारी कटिंग दिखाई और कहा कि मेजर ध्यानचंद जो तुम्हारे पिताजी हैं वो कितने अद्भुत खिलाड़ी हैं। विदेश में एक व्यक्ति स्ट्रेचर पर लेटकर उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद नींद में भी सोते थे तो सोते सोते भी वो हॉकी खेलते थे। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो मैदान का एक एक इंच उनके दिमाग में, जैसे शतरंज की एक एक गोटी के लिए खाना बना होता है, कि एक गोटी की मुंह फिक्स रहती है, चाल फिक्स रहती है, वैसे ही उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में पूरी हॉकी का ग्राउंड फिक्स रहता था। एक बार क्या हुआ, इंडिया की टीम खेल रही थी, मेजर साहब खेल रहे थे और जब वो खेल रहे थे तो खेलते खेलते टीम गोल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट को बुलवाया और बुलवा कर कहा कि कुछ गड़बड़ है। और वो जो गड़बड़ पता की तो पता लगा कि जो गोल पोस्ट है, उस गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, जो मैदान का नाप है, वो जो मापदंड होने चाहिए उसके बराबर नहीं था। उसमें उनमें हल्का सा अंतर था। तो ऐसा मेजर ध्यानचंद का ग्राउंड के ऊपर पकड़ थी कि उनकी आंखों पर यदि पट्टी बांध दी जाए तो भी वो इंच ग्राउंड का, हॉकी के मैदान का नाप कर बता सकते थे। ऐसा तप, ऐसा समर्पण, ऐसी सिद्धि उन्होंने हॉकी के ऊपर प्राप्त की। मेजर ध्यानचंद बार बार ये कहते थे कि मेरे लिए हॉकी मेरा मजहब है। उनकी रग रग में, उनकी नस नस में हॉकी दौड़ती थी। हॉकी के लिए वो जीते थे, हॉकी के लिए वो मरते थे। उन्होंने भारत में आने के बाद सैकड़ों युवाओं को हॉकी सिखाई। झांसी में रहे वो, जन्म इलाहाबाद में हुआ, बाद में वो झांसी में शिफ्ट हो गए। अभी भी आप झांसी में जाते हैं तो झांसी के बाहर पहाड़ के पास, जब आउटर झांसी में हम निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी लगी हुई है। उनके द्वारा बनाया हुआ स्टेडियम झांसी हीरोज के नाम से उन्होंने
हॉकी की टीम बनाई, वो आज भी यहाँ पर है। मुझे वहां पर जाने का अवसर मिला है, नमन करने का अवसर मिला है। अब बात करते हैं कि राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब ये राजीव गांधी कौन थे? क्या देश विदेश में इनकी कोई मान्यता है? क्या कभी उन्होंने कोई बड़ा काम किया? क्या उन्होंने कोई हॉकी की बात छोड़ दीजिए, फुटबॉल की छोड़ दीजिए, अंग्रेजों का खेल है, चलो क्रिकेट की बात भी छोड़ दीजिए, क्या वो कभी अपने घर की गली में गिल्ली डंडा भी खेले हैं? क्या कभी कंचे का खेल खेलते हुए भी उन्होंने कोई खेल जीता? जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, कभी स्टिक नहीं पकड़ी, कभी दौड़ नहीं लगाई, ऐसे गांधी परिवार के राजीव गांधी के नाम पर खिलाड़ियों का खेल रत्न पुरस्कार होना खिलाड़ियों का अपमान है। मेजर ध्यानचंद को बहुत बाद में पद्म भूषण दिया गया। मेजर ध्यानचंद की कैसी दुर्गति इस कांग्रेस की सरकार ने की, वो सब आपको पता है। हमारे शहीदों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे महापुरुषों, भारत की परंपराओं, भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे अधिक बर्बाद करने का काम यदि किसी ने किया है तो आजादी के इन 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने मेजर ध्यानचंद को सम्मान नहीं दिया। आज भी राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। वो व्यक्ति जिसने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, उसमें गली के 4 बच्चों के बीच में जो कभी जीता नहीं, कभी गली के अंदर कंचे खेलते हुए जो जीत नहीं सकता, उसके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना खेल का अपमान है, पुरस्कार का अपमान है। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ये तीनों ओलंपिक जीते गए 1947 से पहले। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद खेलों में इतनी राजनीति हुई कि मेजर ध्यानचंद को एक बार जब वो नेशनल हॉकी टीम जब बुरी तरह हार रही थी तो उनका राष्ट्रीय कोच बनाया गया। कोच बनाने के बाद वो हैदराबाद में एक बार एक मैच देख रहे थे तो सिपाही ने उनका कॉलर पकड़कर उनको रोक दिया। उनको लाइन में लगना पड़ा। लाइन में लगकर उन्होंने जनरल एक आम दर्शक की तरह टिकट ली और टिकट लेकर उनको एंट्री करनी पड़ी। तो इतना अपमान करने का काम देश की कांग्रेस की सरकारों ने हमारे महान खिलाड़ियों का किया है। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और मेजर ध्यानचंद को हम पूरे भारत स्वाभिमान परिवार की ओर से नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हमें भारत को वैसा भारत बनाना है। मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हमारे हर गली में, हर गांव में हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता को तराश सकें, उसको पहचान सकें, खेलों से राजनीति को निकाल सकें। खेलों में जो कोई खिलाड़ी हो वही खेलों की फेडरेशन का अध्यक्ष हो, वही खेल मंत्री हो, वही खिलाड़ी चयन की टीम में हो। खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे हरियाणा के 1-2 ऐसे परिवार हैं जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने राजनीति में षड्यंत्रों के खेल खेले हैं। उन्होंने फेडरेशन के ऊपर, ओलंपिक फेडरेशन के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। अपने भारत में यदि कलमाड़ी जैसे लोग ओलंपिक फेडरेशन का, खेलों की एसोसिएशन का नेतृत्व करेंगे तो इस भारत को गोल्ड मेडल की बात छोड़ दीजिए, चांदी के, तांबे के, रजत, कांस्य, इन पदकों के लिए भी तरसना पड़ेगा। छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख है, वो 20-20, 30-30, 50-50 मेडल लेकर जाते हैं और हमारा भारत जो 130 करोड़ लोगों का है, उसके हिस्से में कई बार एक मेडल भी नहीं आता। तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हमने मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को, जो हॉकी के जादूगर थे, उनको उचित मान सम्मान नहीं दिया। तो आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी जयंती पर भावपूर्ण उनको याद करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई उनको सुधारेंगे और भारत को विश्व गुरु भारत बनाएंगे। ये जो विश्व गुरु भारत बनेगा, ये केवल शिक्षा में नहीं बनेगा, चिकित्सा में नहीं बनेगा, शोध में नहीं बनेगा, खेलों में भी हमें विश्व गुरु भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यदि आपको ठीक लगा हो कि यह मेजर ध्यानचंद की कहानी बच्चे बच्चे तक जानी चाहिए, उनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। अगर बताया जाए हिंदुस्तान के एक बच्चे को कि लकड़ी की टहनी तोड़कर तुम ध्यानचंद बन सकते हो, तो हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जो लाखों की संख्या में ध्यानचंद निकलेंगे। तो उनकी कहानी को पाठ्य पुस्तकों में भी कितना पढ़ाया जाता है, कितना उनको महिमा मंडित किया जाता है, ये सब जानते हैं आप। तो आपको यदि ठीक लगी हो, आप यदि विद्यालय में शिक्षक हैं, तो इस कहानी को, इस पॉइंट को नोट करके आप वहां पर भाषण दें, उनको बताएं। आप कहीं भी संबंधित हैं,
तो आपको मौका मिले तो 10 व्यक्तियों तक, 20 व्यक्तियों तक, 50 व्यक्तियों तक आप मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएं। आप भाषण नहीं दे सकते तो 4 व्यक्तियों के बीच में चाय पीते हुए जब बैठे, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, मेट्रो में बैठे, तो मेजर ध्यानचंद की इन 10 बातों में से आपको कोई 2 बात भी याद रहे तो उनकी चर्चा जरूर कर दीजिए। तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप फेसबुक, ट्विटर यूज करते हैं, इसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप इसको अपनी भाषा में वीडियो बनाइए, बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए, इसकी पोस्ट लिखिए, इसको व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर कर दीजिए। यह एक बड़ी श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को होगी। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Now, moving on to the last activities, that is quiz. And in this quiz, from class 5th to 12th students will going to participate, and every student will going to participate in the quiz. After completion of quiz, you will receive the e-certificates, that is participation and your merit certificates. And for quiz, the link will be provided by your class teacher in your WhatsApp group. Thank you. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Morning. I, Tamanna, from class 10th A, is going to give you a speech on COVID-19 fitness at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. But in the time of this crisis, it's very important for people of all ages and abilities to do some sorts of exercise. By doing 3-4 minutes of light intensity physical activities such as walking or stretching will help you ease your muscles and improve blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, manage weight, make us active. For older people, activities that improve balance to prevent falls and injuries. Physical exercises help to boost our immune system, which may prevent the chances of getting ill and having corona disease. We should do yoga at our home in the early morning. In this crisis, we can do yoga, meditation and exercise at home. A mind running with negative thoughts over the uncertain future often results in sleepless nights, which causes daytime fatigue. Yoga can reduce these types of diseases. In the time of COVID-19, we can do exercise at home to keep ourselves fit. So we should do exercise at home once in a day for half an hour to keep our body fit and healthy. Thank you.